السلام علیکم، میں آئیسر کے پلیٹ فارم سے مبشر شہزاد. آج ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے پوڈ کاسٹ کا ٹریک ٹو پاکستان، اس کی دوسری پوڈ کاسٹ ہے، اور جہاں سے ہم نے کل بات ختم کی تھی آج وہاں سے ہی ہم دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں. تو عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو علی گڑھ تحریک ہے اس کے کیا متحرکات تھے، اور سر اس تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اور سر اگر وہ اس وقت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، وہ کیوں ضروری تھی. اور سر اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی لیجیے کہ سر سید احمد خان جو شخصیت ہے بحیثیت شخصیت، ان کے بارے میں بھی سر بڑا تضاد ہے. جی چلیں جی. سو آپ نے کافی زیادہ کوشچن ٹائم کوئن کر دی، چلے آپ ان کو سیگمنٹلی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے علی گڑھ موومنٹ کا، اس کے لیے ہمیں اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن جب 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی اینڈ اٹ پرووڈ ٹو بی این اٹر فیلئر، اب یہاں سے آگے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، دیٹ واز سسٹمیٹک سبجوگیشن آف دی انڈین کمیونٹی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو برٹش کولونیل سسٹم ہے، بشیر صاحب وہ ایک ڈاکٹرائن کے مطابق آپریٹ کرتا ہے. وہ ڈاکٹرائن کیا ہے؟ وائٹ مین برڈنس تھیوری. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری نان برٹش کمیونٹی ہے، یہ جو نان ویسٹرن کمیونٹی ہے، یہ سارے کے سارے ان ایجوکیٹڈ ہیں، یہ سارے کے سارے ان ایتھیکل ہیں، یہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، اور یہ لیسر ہیومن بینگز ہیں. کیونکہ نہ تو یہ ترقی یافتہ ہو سکے، نہ ان کے پاس وہ پروگریسو مائنڈ سیٹ ہے، اور نہ ان کے پاس ایک جو پروگریسو لائف سٹائل ہے. تو اس لیے وہ ان کو نا لیسر ہیومن بینگز کنسیڈر کرتے تھے، جو آپ کے برٹش کولونیل ماسٹرز تھے. تو وہ پھر جہاں پہ بھی جاتے تھے، جس ایریا میں بھی جاتے تھے، تو ان کا پرائم کنسرن یہ ہوتا تھا کہ وی آر ہیئر ٹو سیویلائز دس کمیونٹی. ہم ان کو پروگریسو بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو بیسیکلی ریفارم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اب یہ ان کے ایجنڈا کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کا آغاز تھا. اور جیسی پھر 1857 کی ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے، تو اب برٹشرز کے لیے مبشر صاحب دو کنسرنز تھے. پہلا کنسرن یہ تھا کہ وہ جو ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے، جس کو اکارڈنگ ٹو برٹش وہ اس کو ریبیلین یا میوٹنی کنسیڈر کرتے تھے، فیوچر میں اس طرح کا کوئی بھی ورڈ نہ ہو، وہ اس پاسبلٹی کو کرو کرنا چاہتے تھے. اور اس پاسبلٹی کو اینڈ کرنے کے لیے پھر 1857 کے بعد جو ایک سیریز چلی ریپریسو ایکشنز کی، ہم جس کو رین آف ٹیرر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں عام طور پہ چونکہ مسلم کمیونٹیز کے اوپر یہ ایلیگیشنز تھیں کہ دے ہیو پلیڈ اے ویری ایکٹیو اینڈ کنٹریبیوٹیو رول ان دی آرگنائزیشن اینڈ دین پروگریشن آف دس ہول وار آف انڈیپینڈنس. انہوں نے پھر ان کو بڑا ایک سسٹمیٹک ایک جو سبجوگیشن ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، ان کی پراپرٹیز کو کانفسکیٹ کیا گیا، اور سوشل پولیٹیکل اور اکنامیکلی ان کو مکمل طور پہ دم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو ہم رین آف ٹیرر کہتے ہیں، کیونکہ اب اس رین آف ٹیرر کے تحت وہ بیسیکلی اپنے رول کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کو سسٹمائز کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ پراپر آپریشنل پیرامیٹرز کے مطابق یہاں پہ اپنا اسٹرکٹ جو کولونیل رول ہے اس کو اسٹیبلش کر سکیں. ایک تو یہ تھا. اب دوسرا مبشر انہوں نے اس رول کو چونکہ کرنا تھا انسٹیٹیوشنلائز، تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ اپنے پھر کلونیل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے تھے. یہاں پہ ایسے انسٹیٹیوشنز لے کے آنے تھے جو کہ ان کی کلونیل پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں، اور جو ان کی کلونیل رول ہے اس کو افیکٹولی گراس روٹ لیول تک لے کے جا سکیں. اچھا، یہ جو ٹائم تھا، دس از کنسیڈرڈ دا ڈارک ایجز فار دا مسلم گلوریس پیریڈ. اب دیکھیں نا، وہ کمیونٹی جو پہلے رولنگ ایلیٹ تھی، اب وہ کمیونٹی ڈائریکٹ ایک سپریسڈ اور ایک سبجوگیٹڈ کمیونٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور دوسرا مبشر صاحب ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا علی گڑھ کے پروسپیکٹ میں ہمیں دوسری چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب 1688 میں برٹش گلوریس ریولوشن آیا تھا، اور اس کے بعد انوویٹو آئیڈیاز کا ایک انفلکس شروع ہوا، اور سوسائٹی کی جو ہے نا وہ پروگریشن، جس کو ہم ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ کی جو ایک انفلٹریشن سٹارٹ ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انوویٹو آئیڈیاز آئے. گریجولی وہ ایگریکلچرل ریولوشن کی طرف لے کے گئے، پھر وہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ترقی کی بنیاد پڑی اور معاشرہ پھر جو نا وہ جدیدیت ماڈرنزم کی طرف گیا. اب برٹشر اس چیز کے اوپر بڑا جو نا پرائڈ فیل کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اب وہ جہاں چونکہ ان کے پاس یہ لیبل موجود ہے کہ دے آر دا پائنیئرز آف ماڈرنزم، تو ان کے مطابق جو پوری دنیا کی ماڈرنٹی ہے نا، اٹ از امبیڈڈ آن برٹش سوئل. تو اس چیز کا لیبل لے کے وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی اسی طرح کی ماڈرنٹی دینے آ رہے ہیں، ہم آپ کو ماڈرنائز اور آپ کو جو ہے نا سیولائز کرنے آ رہے ہیں. تو مبشر صاحب اب ان کی بیسک جو وہاں پہ ایشو تھا نا، کہ جس کی وجہ سے وہ سارے چینجز آئے یا مین جو پروسپیکٹس تھے، وہ تھی ان کی انوویٹو ایجوکیشن. اب اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں جناب، انڈیا میں ایک پہلا ایجوکیشنل جو سسٹم تھا آرگنائزڈ، وہ چندر گپت موریہ امپائر کے اندر اسٹیبلش ہوا. اس کے بعد جب مغلز آئے، دلی سلطنت کے اندر کوئی ایک یونیورسل ایجوکیشنل کریکولم نہیں تھا انڈیا کے اندر. وہ پھر
जब मुगल एम्पायर आए तो फिर यहाँ पे एक प्रॉपर एजुकेशनल पैराडाइम डेवलप की गई। लेकिन मुबशर साहब अब मसला ये था कि वो 16वीं 17वीं सदी का जो बनाया हुआ निसाब था अब वो 19वीं और 20वीं सदी में बिल्कुल आउटडेटेड और रिडंडेंट हो चुका था। और यही वजह थी कि अगर वो एजुकेशन मॉडर्नाइज हो जाती या उसके अंदर इनोवेशन आ जाती तो माइट बी पॉसिबल कि मुगल्स मॉडर्न फाउंडेशंस के ऊपर अपनी एम्पायर को रीइन्विगोरेट कर लेते, उसको मॉडर्नाइज कर लेते और उसका डिफेंस थोड़ा आप समझने बेहतर हो सकता था। लेकिन चूंकि आउटडेटेड एजुकेशन थी, आउटडेटेड माइंडसेट था लोगों का, इनोवेशन को स्पेस नहीं दी गई, तो ग्रेजुअली वो एक सोसाइटल कोलैप्स की वजह भी बनी, डिक्लाइन की वजह भी बनी। तो अब देखिए ये दो फैक्टर्स थे, एक तरफ रिप्रेशन थी और एक तरफ आउटडेटेड एजुकेशन थी, जो कि दोनों डिमांड कर रहे थे कि नाउ दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट दैट कुड ब्रिंग इनोवेटिव एजुकेशन, that could bring innovative ideas and that could equip the community with the latest educational standards। तो वैसे सब ये वो फिर हालात थे जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को बेसिकली उसकी इंसेप्शन को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है वो गाइड किया था। सही है। और सर जब कल हमारा जिक्र हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, तो उसके बाद मुसलमानों की जो हालत हो चुकी हुई थी, अगर ये तहरीक शुरू ना होती तो फिर मजीद आप बता सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली कि मुसलमानों के हालात फिर क्या होते हैं? हाँ देखिए मुझे सब इस तहरीक के अंदर जो सारा का सारा ब्रंड था ना, द होल जिसको हम कहते हैं द होल गिल्ट ऑफ दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो लेवल किया गया था मुस्लिम्स के ऊपर। इट मीन्स दे वर द डायरेक्ट विक्टिम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉलोनियल मास्टर्स। तो अगर मुस्लिम्स एजुकेट ना करते, मुस्लिम्स की वहां पे रिफॉर्मेशन ना होती, उनकी जो मेंटल इनलाइटनमेंट थी वो सिलसिला शुरू ना होता मुबशर साहब, तो मुमकिन था कि शायद मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी और मुस्लिम जो आइडेंटिटी थी वो ऑल थ्रू आउट एलिमिनेट हो जाती इंडिया से। इवन के राइट आफ्टर 1857 एक ब्रिटिश ऑफिसर, शायद लिटन नाम था उनका, उनके वर्ड्स हैं कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सटर्मिनेट कर दें तो हमारा वो जो सिविलाइजेशन का जो बेसिकली एजेंडा है या हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली फुलफिल हो सकता है। तो दिस वाज द माइंडसेट कि दे वांटेड टू एक्सटर्मिनेट द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल थ्रू आउट। तो उसके लिए ये बड़ा जरूरी था। अब दूसरी बात ये थी कि इंडिया के अंदर Muslims were not in majority, they were a minority, even the largest minority of India। तो being a minority, एक majority के साथ अपना status उस एट पार रखना, अपनी existence को sustain करना, अपने survival को ensure करना और फिर अपनी social, political और economic presence को parallel लेके चलना, ये बहुत बड़ा एक challenge था। उस चैलेंज के लिए आपको मॉडर्न एजुकेशन जरूरी थी। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मुस्लिम उस टाइम पे उनको एजुकेट ना किया जाता, उनको रिफॉर्म ना किया जाता, अगर उनकी मॉरल अपग्रेडेशन ना होती, अगर उनकी सोशल इक्विपमेंट ना होती, पॉलिटिकल ट्रेनिंग ना होती, इट मीन्स कि वो इंडिया की तमाम कम्युनिटीज के अंदर बिल्कुल एक इररेलेवेंट और एक सबऑर्डिनेट कम्युनिटी बन के रह जाते ना। तो वो क्योंकि देखें जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे मुबशर साहब, उन्होंने यहाँ पे अपना एक सोशल सिस्टम इंप्लीमेंट किया। अब अगर आपने जॉब लेनी है उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी है। अब मुस्लिम जो थे वो ट्रेडिशनल जो इस्लामिक एजुकेशन के पढ़े हुए थे, मदरसा सिस्टम के पढ़े हुए थे, अब वो दे वर टोटली ऑब्लिवियन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, दे डिडंट नो अबाउट द मॉडर्न लिटरेचर। तो इस मीन्स दे वर टोटली अनफिट फॉर द मॉडर्न जॉब एटमोस्फेयर या मॉडर्न जॉब कल्चर। अब आपको पता उस टाइम पे अगर आपने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना है, अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अपना मेंटेन करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए ना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। इफ यू आर अनएजुकेटेड एंड इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो इट मीन्स यू आर टोटली आउट ऑफ रेस। तो इट मीन्स कि इफ मुस्लिम्स had not been educated at that time, they would have become irrelevant। तो सर ये तहरीक तो बहुत ही अहम हुई। और सर इसका बेड़ा उठाया किसने? सर सैयद अहमद खान। ऑब्वियसली सर एक शख्सियत के बारे में सर सलीम खान साहब के अगर बारे में पढ़ते हैं, देखें कि सबसे इंडिया दिल्ली के अंदर उनकी पैदाइश हुई और इसके साथ अब उनके पास एक ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि वो एज अ जज 1867 में जब अपॉइंट हुए तो गवर्नमेंट कैडर के अंदर सर्व भी कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह जब हम देखते हैं ना कि उनके पास एक्सपोजर और एक्सपीरियंस कितना था, लेकिन बशीर साहब 1860s के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने सर सलीम खान साहब के बेटे को एक ना स्कॉलरशिप ऑफर की कि आप जाएं और ब्रिटेन के अंदर स्टडी करें, तो उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सर सैयद अहमद खान साहब अपने बेटे के साथ भी ब्रिटेन गए। वहां पे उन्होंने कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम देखा या उसके पैरेलल जो एजुकेशन सिस्टम उनको स्टडी किया, उनके एलिमेंट्स को देखा, उनके कंपोनेंट्स को देखा, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी की वो उनके लर्निंग मैकेनिज्म को जब स्टडी किया डिटेल से, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज टोटली इन
accordance with the demands of the current time, तो वो कंटेम्प्रेरी इरा की डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है. तो वो एक्चुअल एक्सपोजर के साथ जब फिर इंडिया आए और जब वो रिटायर हुए एक्चुअली, तो रिटायरमेंट के बाद वो फिर परमानेंटली जनाब अलीगढ़ के अंदर ही सेटल हो गए. फिर वहां से उन्होंने अपनी वो जो एक एजुकेशनल अपग्रेडेशन और एक मॉरल रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी उसको उन्होंने स्टार्ट किया, जिसको हम अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं. और ये बहुत बड़ा लैंडमार्क बेसिकली मूवमेंट है इन द एंटायर मेडिएवल हिस्ट्री और या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. देखिए सर, बच्चों को अलीगढ़ तहरीक वैसे तो उन लोगों ने पढ़ी होगी, और सर सैयद अहमद खान की जो सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशनल, पॉलिटिकल, और उनकी किताबों के नाम बताने का मकसद हमारे यहाँ पे इस पॉडकास्ट का ये है सर, जो इस किताब के साथ आप क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए. तो सर बिल्कुल, अब हम सर इस पॉडकास्ट को अपनी कंक्लूड करते हैं. सर, अलीगढ़ की तहरीक ने मुसलमानों को दोबारा से उनके पैरों पे खड़ा किया, और ये फिर तहरीक जो बनी, और सर सैयद अहमद खान की आपने सर्विसेज. सर, तो मेरा आखिरी सवाल तो फिर रह गया कि क्यों उनको कंट्रोवर्शियल एक पर्सनालिटी के तौर पे कुछ उस वक्त के उलमा हजरात ने भी और आज के लोग भी उनके बारे में कुछ नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म करते हैं, काइंडली उसको बताइए. जी सर, सीमा खान साहब के बारे में एक तो अच्छा दो पैरेलल ओपिनियंस हैं. जी सर. एक तो ओपिनियन है कि ही इज कंसीडर्ड अ सेवियर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट इवन मुस्लिम, द होल इंडियन कम्युनिटी. दूसरा, उनके बारे में जो चार्जेस लगाए जाते हैं ना वैसे सब, सबसे बड़ा चार्ज ये है कि उन्होंने ना यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करवाने में एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया. उनको जो आपको पता है जो एजुकेशन है ना वैसे साहब, वो एक प्रॉपर सोशल सिस्टम लेके आती है. आप जो पढ़ते हैं आप वो बनते हैं. अब जब आप ब्रिटिश कल्चर को, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इट मींस एक इनहेरेंट जो ना आपके अंदर टेंडेंसी आ रही है टू एक्सेप्ट एंड टू सबमिट बिफोर द ब्रिटिश कल्चर. तो वो जो एक स्लेवरी का माइंडसेट था या एक जो सर्विलिटी का एटीट्यूड था, वो उस एजुकेशन सिस्टम के साथ आया जो कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है. पहली जो उनको ऊपर क्रिटिसिज्म होती है. अच्छा, दूसरी जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होती है वो कलेक्टिव इंडियन कम्युनिटी की तरफ से की जाती है. तो देखें, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए एज एन आउटसाइड फोर्स या एज अ फॉरेनर फोर्स, तो उस टाइम पे इंडिया नीडेड अ यूनिटी. और वो यूनिटी कैसे हो सकती थी कि एक प्रॉपर कलेक्टिव या एक होलिस्टिक इंडियन मूवमेंट जनरेट होती जो कॉलोनियलिज्म को अपोज करती. तो वो कहा जाता है कि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उन्होंने उसको अपोज किया. और इवन के एक बहुत बड़ी जो इंडिया की कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको बार किया कि दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस पॉलिटिक्स. तो यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज इस एस्पेक्ट से किया जाता है कि उन्होंने वो जो एक यूनिफिकेशन का एस्पेक्ट था कि पूरी इंडियन कम्युनिटी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होके एक सिंगल कॉज के लिए स्ट्रगल करे. वो कॉज क्या थी? टू डीकोलोनाइज इंडिया, टू इमेंसिपेट इंडिया फ्रॉम द कॉलोनियल टेंटिकल्स. तो उन्होंने उससे क्या कर लिया? खुद को डेविएट कर लिया. फिर तीसरी चीज जो उनको ऊपर चार्ज लगाया जाता है वो लगाया जाता है सेपरेटिज्म और डिवीजन का, कि ही ब्रॉट डिवाइसिव पॉलिटिक्स. कि उन्होंने जब क्योंकि ही इज आल्सो कंसीडर्ड अ पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी. जब 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई तो वहां पे उन्होंने बड़ा डेलिबरेटली ये डिक्लेयर किया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट. क्योंकि उससे पहले उनके नजरियात कुछ और थे. पहले तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया. जैसा वो बिल्कुल ये कहते थे कि टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड. हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन, दो आंखें. तो ये उनके रिमार्क्स थे शुरू में. लेकिन जब उन्होंने कुछ सोसाइटी के अंदर एलिमेंट्स को देखा, इसलिए उनका एक सब्जेक्टिव असेसमेंट थी. जब उन्होंने देखा कि दो कम्युनिटीज के दरमियान उस तरह की इंटीग्रेशन नहीं हो रही या उस तरह की एफिलिएशन के दरमियान में नहीं है, एक डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर्स उनके दरमियान, तो फिर वो उनके जो आइडियाज थे दे अंडरवेंट अ पैराडाइम शिफ्ट. और फिर उनका जो एक माइंडसेट था वो चेंज हो गया कि देखें जी, अब ये जो दो कम्युनिटीज हैं, क्योंकि इनके दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है, इनके दरमियान की को एक्सिस्टेंस के प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तो इट मीन्स के बोथ ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट नेशंस एंड दे शुड carve out their separate paths, क्योंकि वो एक रास्ते पे नहीं चल सकते. तो फिर वो इसीलिए हम कहते हैं कि he is also a pioneer of two nation theory. तो इस प्रोस्पेक्ट की वजह से कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया के अंदर डिवीजन को प्रमोट किया. उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म उनके ऊपर की जाती है. लेकिन अगर हम इसको असेस करते हैं बशीर साहब, तो ये अगर फॉर एग्जांपल अगर वो इस तरह की असेसमेंट कर रहे थे, अगर उनके आइडियाज में ये शिफ्ट आ रहा था, तो दैट वाज नॉट
इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। वो जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर इवेंट्स हो रहे थे या कुछ हिंदू एलिमेंट्स, नॉट ऑल द हिंदू कम्युनिटी, कुछ हिंदू एलिमेंट्स जो उस तरह के एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे या उस तरह के कुछ एलिमेंट्स हो रहे थे जो कि उनकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और दूसरा उनको लग रहा था कि बाय द टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मुलेटेड, दिस वाज नॉट अ राइट टाइम फॉर मुस्लिम्स टू जॉइन पॉलिटिक्स। They were not educated politically, they had not political acumen, और उस टाइम पे चूंकि वो इलिटरेट भी थे पॉलिटिकली, आप समझने के अनस्ट्यूट थे, उनके पास वो विजडम नहीं थी, पॉलिटिकल सेंस नहीं थी, तो इट कुड हैव प्रूवन टू बी अ डिजास्टर फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दे कुड हैव बीन यूज्ड एज जस्ट टेंटिकल्स। वो सिंपल वो ना आप समझने के वो बन जाते, उनके लिए इस्तेमाल की चीज इस्तेमाल किए जा सकते थे, उनकी सपोर्ट इस्तेमाल करके, या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को अचीव कर सकती थी। तो ये एक इसका असेसमेंट हो सकती है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने तो मुझे एनलाइटन कर दिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है आपके इस पूरे इसमें से जब आपने कहा ना कि रेन ऑफ टेरर, और जब अंग्रेजों के बारे में आप बोलने लगे कि उन्होंने सोचा कि हम लोग डार्क एजेस में, तो शायद वो भी भूल गए कि वो भी डिस्पाइट ऑफ दे आर इन द डार्क एजेस एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट इन एसेंस दे कम टुवर्ड्स। चलिए उसमें ये थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूं, जिस टाइम पे ये म्यूटनी हुई ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको वो म्यूटनी कहते हैं, लॉर्ड पामस्टन की गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में। अच्छा, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ही ऑलवेज फेल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनकी जो स्पेशलिटी थी वो थी फॉरेन अफेयर्स। 1856 के अंदर जब यहाँ पे ओपियम वॉर, सेकंड ओपियम वॉर चाइना के अंदर लड़ी गई, को उसने बड़ा सक्सेसफुली जो है ना क्वेल किया। सिमिलरली इंडिया के अंदर जब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, इट वाज अगेन क्रश्ड बाय द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड पामस्टन। तो ये उनकी एक स्पेशलिटी थी कि वो फॉरेन अफेयर्स में बड़े जो है एस्ट्यूट थे और बड़े रिएक्टिव थे, बड़े कैलकुलेटेड थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर तो खैर वो इतना सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन एज अ फॉरेन मिनिस्टर ही वाज वेरी सक्सेसफुल। वो हमें भी नजर आता है कि जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनाइजेशन हुई है और सीक्वेंशियली चीजें जो है ना वो यहाँ पे सेटल होती गई हैं, सोशलाइजेशन हुई है, सोशियोलॉजिकल चेंजेस हुई है, फिर एक वेस्टर्नाइजेशन की जो डिफ्यूजन हुई है, दैट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये एक रिफ्लेक्ट करता है उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी बैक इन ब्रिटेन, उनका माइंडसेट और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी थी। जबरदस्त। चलें सर, आपने जितना इन डेप्थ एनालिसिस दे दिया ना, अलीगढ़ तहरीक को तो बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से क्रिटिकली एनालाइज करके सर इवेंट्स के साथ चीजों को मुंसलिक करना, सर डॉक्टर आमिर साहब आप भी कर सकते हैं। रियली थैंकफुल टू यू एंड वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेकंड पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज।